Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually we are going to discuss about the some topics that are related to the agriculture because we are on the way to conclude the syllabus of standard 9 and we reached into the chapter 6, which is the last chapter of biology for that standard. So guys, we have discussed about all these things about the increasing the quality of the farmyards, increasing the capacity, how can we maintain the production, and how can we protect our crop fields. All these things we have discussed in the previous video. Also I have discussed about the irrigation facility because that is the most important topic just to have or regaining the high qualified cereals or the crop grains. So guys, today we are going to discuss about the cropping pattern, that what type of cropping patterns did we follow just to increase the production or the productivity of the crops, ताकि हमें ये रिस्क नहीं हो कि हम जो एक क्रॉप उगा रहे हैं अगर उसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिल पाया, फेवरेबल इरिगेशन सप्लाई नहीं हो पाई, तो फिर हमारा क्रॉप या फिर हम प्रोडक्शन की जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे अपनी एग्रीकल्चर से वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। और जितनी इकोनॉमिसिटी, जितना कि हम आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूट कर सकते थे या फिर कर रहे थे, उसका कोई प्रॉफिट अगर हमें नहीं मिले तो इट इज़ वेरी सैड मैटर और सैड इशू फॉर द फार्मर्स. So we have discovered some of the new cropping patterns. Previous time also we are using or we are following that, but nowadays scientifically it is or logically it is also approved that the cropping patterns, the different cropping patterns, just like the crop rotation, mixed cropping, intercropping, these all are the very important things which are going to increase the yielding capacity of the farmyards. So guys, in discussing the cropping pattern, mixed cropping and intercropping is going to be discussed today, and in the next video we are going to discuss about the crop rotation, because singly crop rotation, if we will combinedly take all these three topics in a single video, then it will take a long time and I know you all will become bored with that. So without going any delay, let's come on the topic. Let's start. Mixed cropping. Guys, do you know what is mixed cropping? Actually by the name it is confirmed or it is understood that it is mixed. We are not going to getting any pattern or getting any row or getting any separate seedlings. We are just having the seeds of the two crops or two grains and mix it, and after mixing it we will just throw it in the fields. Because मिक्स्ड क्रॉप है, हम इसके लिए कोई भी दूसरा तरीका नहीं अपनाने जा रहे हैं, ना ही हम सीड्स को अलग रखेंगे. हम क्या है, इसका एम बस वही है कि मिनिमाइज़ करता है क्रॉप के फेल्योर के रिस्क को. यानी फार्मर्स को जो रिस्क है कि हम एक फसल खेत में लगा रहे हैं, अगर वो डूब जाए, अगर वो नहीं हो, तो जितनी मेहनत हमने की, जितना सारा पैसा उसमें लगाया, वो सब बेकार चला जाएगा. सो गाइस, तो इस फेल्योर के डर से बचने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए फार्मर्स पहले भी क्रॉप को मिक्स करके लगाते थे. जैसे अगर पोटैटो है तो उसमें मस्टर्ड का पेड़ होता था, अदरवाइज़ अगर मूंग दाल है तो उसमें लोग मेज़ लगाते थे, मक्के की फसल रोपते थे. उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी है, जैसे ग्राउंड नट्स होते थे तो उसमें सनफ्लावर के पेड़. एक प्लांट छोटा है तो एक प्लांट कुछ मीडियम साइज़ का है. इस तरह अगर हम मिक्स करके क्रॉप्स को लगाते हैं तो क्रॉप फेल्योर के रिस्क से हम काफ़ी हद तक क्या हो सकते हैं गाइस, बच सकते हैं. तो लेट्स गेट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग. दैट मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ अ पैटर्न ऑफ ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक नहीं, एक साथ. साइमल्टेनियसली यानी एक साथ अगर किसी एक ही फील्ड में हम दो क्रॉप्स को लगा रहे हैं तो व्हाट विल इट कॉल्ड, इट विल कॉल्ड अ मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो गाइज, नोट इट डाउन एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग. सो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग था. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग. और कुछ ग्रेन्स है, जैसे आप भी नॉर्मली लाइफ में अगर आप किसी फार्मिंग से जुड़े हुए फैमिली से हों, अदरवाइज़ आपके एंसेस्टर्स अगर फार्मिंग से जुड़े हुए थे, यू कैन आस्क फ्रॉम दैट कि हम लोग बहुत सारी ऐसे मेथड्स यूज़ करते थे जिनसे हम लोग क्रॉप फेल्योर के रिस्क से बचना चाहते थे, या फिर हम अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन रखना चाहते थे ताकि हमारे इस सेशन का क्रॉप बेकार नहीं जाए और वो बचे. सो गाइज, दिस इज़ द मिक्स्ड क्रॉपिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरक्रॉपिंग. Intercropping, it means one by one we will put the crops or we will put the pattern of the grains, different grains in a ratio. It may be in the ratio of 1:1, 1:2. एक मेन क्रॉप होगा और एक अल्टरनेटिव क्रॉप्स होंगे जिन्हें हम लोग इंटरक्रॉप कह सकते हैं, या फिर हम लोग उसके इंटरक्रॉपिंग ही बोलते हैं. जस्ट कि हम एक मेन
किसी भी ग्रेन को लगा रहे हैं या फिर किसी भी मेन प्लांट्स को लगा रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक इंटर प्लांट्स लगाएंगे। जैसे उसके लिए अल्टरनेटिव जो हम लोगों ने लिया, एक रो अगर हमारे मेन प्लांट का है 1:1 का रेशियो है कि अगर एक मेन है तो एक इंटर क्रॉप का रेशियो होगा। जैसे एक रो में अगर वीट है, अगले रो में अगर मेज़ है, फिर अगले में वीट है, फिर अगले में मेज़ है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हो रहा है, पैटर्न बाय पैटर्न चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। सो गाइस, ये हो सकता है 1:1 के रेशियो में, हमने प्रीवियसली भी बोला 1:2 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, चाहे जिस भी तरह के हम फॉलो कर लें, ताकि हम एक तो फसल है जो मे बी द मेन फसल जो हो सकता है वो मे बी टेक द लॉन्ग टाइम, मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स, बट एक छोटे क्रॉप्स होते हैं जो हम उस टाइम पीरियड में 2 बार उस क्रॉप को मतलब ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड घटता है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, और हमारा जो रिस्क है क्रॉप फेल्योर होने का वो भी घटता है। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इंटरक्रॉपिंग की मेन एडवांटेज है, उसका मेन जो प्रिंसिपल आप बोल सकते हो, किस लिए उसे साइंटिस्ट ने अप्रूव किया और किस लिए उसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, प्रमोट कर रहे हैं उसे लगाने के लिए, तो ये है कि प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट एरिया है, छोटे से एरिया से हमें कितना सा प्रोडक्शन मिल रहा है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका एम जस्ट सिंपल है, टू इंक्रीज़ द पर यूनिट एरिया ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स। सो गाइज, ये है मेन डिफरेंस, हम बोल सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग का। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में, हम उन्हें देख सकते हैं कि इंटर क्रॉपिंग ग्रेटली यूटिलाइज होते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कि लाइट्स का या फिर टेम्परेचर का, न्यूट्रिशन का, वाटर का और हवा में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम रो वाइज क्रॉप्स को उगा सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग इज दैट कि एम जो होता है मिक्स क्रॉपिंग का, वो मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी आर यूजिंग जस्ट फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग। एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिफरेंस मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग का हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इसे हम लगाते ही क्यों है, तो बस रिस्क को कम करना होता है, फेल्योर के रिस्क को। दूसरा है कि हम इंटर क्रॉपिंग क्यों करते हैं, तो हमें पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है, पर यूनिट जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं उसको क्या करना है, इंक्रीज़ करना, उसको राइज करना है। ठीक, तो ये है बेसिक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हम कह सकते हैं कि सीड्स जो होते हैं वो ग्रो करने से पहले मिक्स क्रॉपिंग में हम एक साथ मिक्स कर देते हैं दोनों सीड्स को। हम ये नहीं अलग अलग सीड नहीं रखे हुए, जस्ट एक साथ मिक्स करेंगे और वी विल पुट इट इन द सॉइल। बट इन द इंटर क्रॉपिंग वी आर नॉट गोइंग टू मिक्स द सीड्स, वी आर जस्ट गोइंग टू मिक्स द प्लांट, वो भी रेशियो में, ऐसे ही नहीं कहीं भी बिखेर के किसी फील्ड में कहीं कुछ लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया। दैट इज़ नॉट द इंटर क्रॉपिंग। वेन एवर वी डू द इंटर क्रॉपिंग इट मस्ट बी इन अ पैटर्न, इन अ रेशियो, कि हम उन सीड्स को अलग अलग रखेंगे। एक सीड्स इसका लगा है, दूसरा रो इस सीड का होगा, तीसरा अलग पैटर्न अगर है तो वो भी हो सकता है। तो ये है इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में। और हम लोग देख लेते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग में सोइंग रो में नहीं होता, पंक्ति में नहीं होती, पूरे क्रॉप फील्ड में ऐसे ही क्रॉप्स लगे हुए होते हैं। बट इंटर क्रॉपिंग में हमेशा पंक्तियों में होती हैं क्रॉप्स, हमेशा एक पैटर्न होता है। सो गाइज, दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। और एक और क्रॉप पैटर्न रिमेनिंग है, अभी रह गया है, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करने वाले हैं, जो है क्रॉप रोटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस, आई थिंक इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्रॉप रोटेशन ही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ बी विथ मी इन दैट and keep watching my channel. I will suggest you that please share this with your friends, that's why they also could be take some advantage from it if they are the student of standard 9 and if they are studying all these topics. So guys, this is all about the today's session. Hope you all have liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends and subscribe my channel, and don't forget to put me the comment that what you are going to suggest me in the next video, just to make or just to have the discussion on that topic. So guys, don't forget to put the comments what you liked, what you not liked, and your suggestion, because that all things are valuable for me, because our channel, our family is made up just because of you, and you all are the members. So the opinion of all the members in a family is very important. So keep watching, and thank you so